خطیب سر جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں بہترین نظم بھی پڑھا، قابل تعریف نظم جو بہت اچھی لگ رہی تھی. اب اس کے بعد الگ سے مختصر بلا کسی تمہید کے بلا کسی مواد کے میں جناب ضمیر ناز کو مائک کے حوالے کر رہا ہوں اور تمام مقررین کو گزارش کرتا ہوں کہ وقت کی قلت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں جناب ضمیر ناز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف رکھیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اہلیان قاضی پورہ ڈائز پر موجود ہمارے محترم حافظ و قاری حضرت علامہ مولانا سید احمد رضا صاحب قبلہ، مقرر خصوصی، مہمان مقرر جناب سید سلمان صاحب پی ایچ ڈی اسکالر، اور یہاں موجود تمام مقررین و مہمانان خصوصی، اور میرے سامنے موجود آپ تمام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محفل کوئی بھی ہو، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور دستور مسلمان ہے کہ ہمارا آغاز بھی ایمان سے ہو اور اختتام بھی ایمان پر ہو. میں کچھ عرض کروں، آپ کچھ سماعت کریں. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس محفل کو بابرکت بنانے کے لیے بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ جو آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ کس لیے جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو میں علم حاصل کرو آرگنائزیشن عمر کھیڑ، اس کے تمام اراکین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین اس تقریب کا اہتمام کیا ہے. یہ تقریب، آج کی جو تقریب ہے، اس کا انعقاد ہی اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں میں علم کے متعلق بیداری پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. یعنی ہم لوگ اب جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت ہو گیا سونا، ہے نا. کتابی زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے، آپ لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں آپ تمام لوگوں کو پہچانتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کریں. میری تقریر، یا یہاں پہ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ تقریر کریں گے. یہاں سے تقریر سننے کے بعد آپ تمام لوگ جائیں گے. جانے کے بعد یہاں کا جو مواد تھا، ان لوگوں نے جو بیان کرنا تھا، اس کا جو اصل مقصد تھا وہ تو کہیں اور رہ جائے گا. ہم لوگوں کی مقدمہ بازی چلے گی کہ وہ آئے تھے، انہوں نے اس طرح اچھا کہا، ان کے بیان کا انداز اچھا تھا، ان کے بولنے کا طریقہ اچھا تھا، ان کا پرفارمنس بہت اچھا تھا. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کون کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا. کیا کہہ رہا ہے، یہ اہم بات ہے. چلیے، مجھے نذیر آتش نے جب دعوت دی تھی تو مجھے یوں بھی کہا تھا کہ تمام حضرات علم حاصل کرو، اس عنوان پر تقریر کریں گے. آپ کو ہم تعلیم میں پچھڑے ہوئے کیوں ہیں، اس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے. بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے، آگے نہ بڑھاتے ہوئے، آپ تمام لوگ موجود ہیں، اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے میں آپ لوگوں کو ہی سوال پوچھتا ہوں
ایک ایک کر کے جو بھی بتانا چاہتے ہیں آپ میں سے بالکل آواز کے ساتھ بتائیے گا. میرا چھوٹا سا سوال ہے, ہم تعلیم میں کیوں پچھڑے ہوئے ہیں؟ ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ ہم تعلیم میں پیچھے کیوں رہ گئے؟ تھوڑا ڈر لگے گا, اور یہی بات یہ سب لوگ یہاں پہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ تعلیم اور علم کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو جو اعزاز سے نوازا جا رہا ہے, ہم کو جس احترام سے نوازا جا رہا ہے, یہ تعلیم اور علم کی وجہ سے ہی ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم تعلیم میں پچھڑے ہوئے کیوں ہیں. وجوہات بہت زیادہ ہیں, میں چند وجوہات بیان کروں گا اور اس کے بعد چلا جاؤں گا. بس کوشش کرتا ہوں کہ یہ اسباب, یہ وجوہات ہم تمام کے سمجھ میں آ جائیں. ہم تعلیم میں پچھڑے ہوئے ہیں, اس کی سب سے اہم وجہ ہے ادب. ادب سب سے اہم وجہ, سب سے پہلی وجہ ادب. اور دوسری وجہ ہے والدین کی بے خیالی. تیسری وجہ ہے اساتذہ کی غیر ذمہ داری. اور چوتھی وجہ صحبت. پانچویں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حاصل شدہ علم پر اطمینان. اور جو چھٹی وجہ ہے وہ ہے منازل کی لا انتخابی. اس پہ مختصر بتاؤں گا, زیادہ طویل گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ. چلیے ادب کی طرف آتے ہیں. ہم ہمارے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ بچے قوم کا ہتھیار ہوتے ہیں. ہم ہمارے بچوں کو کھلونا بنا رہے ہیں, کھلونا. ہم ہتھیار کب بناتے ہیں ان کو؟ ہتھیار بنانے کے لیے پتہ ہے آپ کو ہتھیار کس طرح بنایا جاتا ہے؟ لوہے کو پگھلانا پڑتا ہے, اس کو نرم بنانا پڑتا ہے, اس پر دوسرے لوہے سے چوٹیں لگانی پڑتی ہے. ان منازل کو طے کرنے کے بعد ایک تلوار, ایک چاقو, ایک چھری بنائی جاتی ہے. اور ہم ہمارے بچوں کو پھولوں میں رکھتے ہیں, لاڑ میں رکھتے ہیں, پیار میں رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ان کو یہ بھی نہیں سکھاتے کہ بیٹا جو پڑھا رہا ہے نا اس کا ادب کرنا پڑتا ہے. کتنی بری بات ہے ہمارے قوم کے لیے, ہمارے اپنوں کے لیے. ہم لوگ یہاں موجود انجان لوگ نہیں ہیں. یہ اظہر الدین خطیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ہوں, آپ سب مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں. میرے پورے خاندان میں تعلیمی یافتہ لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہے, لیکن الحمدللہ میرے ماں باپ نے, میرے دادا نے, میرے چاچا نے مجھے ایک استاد بنایا ہے. I am proud of them. مجھے فخر ہے ان پر کہ میں ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جنہوں نے خود علم حاصل نہیں کیا, لیکن ان کے ذہنوں میں, ان کے دماغوں میں علم کی بڑی اہمیت تھی. میں اپنے تجربات بتاتا ہوں. چھوٹا تھا, اسکول میں پڑھتا تھا, غلطی ہونے پر استاد مارتے ہیں. میں گھر پہ آ کے کبھی کہتا نہیں تھا کہ مجھے کسی سر نے مارا ہے, مجھے سزا دی گئی ہے. ساتھ کے دوست ہی کبھی اگر گھر پہ بول دیتے نا کہ ضمیر کو آج چھڑی ماری گئی, ضمیر کو آج مارا گیا, تو میرے والد صاحب, میرے چاچا, میرے دادا کسی استاد کو, کسی ٹیچر کو جھگڑنے کے لیے نہیں جاتے تھے. ہمارے لاڑ کے بچے کو تم نے کیوں مارا؟ میرے ابا مجھے ہی مارتے تھے, تجھ سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہوگی, تو نے ہی شرارت کی ہوگی, اسی لیے تجھے سزا دی گئی. سدھر کے رہے, سنبھل کے رہے. ہماری بچپن کی جو مار ہے, بچپن کی جو سختیاں ہیں, وہ ہم کو بری لگتی ہیں, لیکن حقیقت میں وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اپنے سرائے میں ٹہل رہے تھے. میں ادب کی بات کر رہا ہوں, ادب کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ خلیفہ ہارون رشید صحن میں ٹہل رہے تھے اور ان کے دونوں شہزادوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد محترم محل میں آیا کرتے, روزانہ آیا کرتے. برسات کا موسم تھا اور دونوں شہزادوں کو استاد صاحب تعلیم دے رہے ہیں. اچانک آسمان میں بادل چھا گئے, امکانات تھے کہ بارش ہو. استاد صاحب نے شہزادوں سے کہا کہ میری جوتیاں چمڑے کی ہیں, پانی میں بھیگ جائے گی تو خراب ہو جائیں گی, اور وہ میرے پاس ایک ہی جوڑی ہے. اگر تم میں سے کوئی ایک جائے اور میری جوتیاں اٹھا کر لا لے تو وہ شاید بھیگنے سے بچ جائے. دونوں کے دونوں شہزادے محبت میں, استاد کے ادب میں, استاد کے احترام میں
उस्ताद की इज्जत की खातिर दोनों के दोनों शहजादे दौड़ते हुए दरवाजे पर गए और जूतियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला शहजादा कहता है कि मैं उठाऊंगा, दूसरा कहता है कि मैं उठाऊंगा, फिर वो कहता है कि मैं उठाऊंगा, फिर ये कहता है कि मैं उठाऊंगा। दोनों वहां झगड़ते हैं। अंदर से उस्ताद ने आवाज दी, अरे झगड़ते क्यों हो, दोनों एक एक उठा कर ला लो। दोनों ने एक एक जूतियां उठा कर ला ली। और ये तमाम मंजर खलीफा हारून रशीद देख रहे थे। जैसे ही उस्ताद की नजर खलीफा पर पड़ी, सुल्तान पर पड़ी, हैबतदारी हो गई, डर गए, खौफजदा हो गए कि मैंने सुल्तान के शहजादों से जूतियां उठवा दी। सुल्तान गजबनाक होंगे, मुझे सजा देंगे। और डर के मारे आंखों में डर लेकर सुल्तान की तरफ बड़ी मायूसी से देखते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, आप डर क्यों रहे हैं? मैं इस बात से नाराज नहीं हूं कि आपने मेरे बच्चों से अपनी जूतियां उठाई है, बल्कि मुझे नाराजगी अपने बच्चों से है कि वो आपकी जूतियां उठाकर ले तो आए, लेकिन सर पर रखकर क्यों नहीं लाए? क्या बात है, क्या बात। ताज रखा है जमाने ने सरों पर उनके, ताज रखा है जमाने ने सरों पर उनके। थे जो उस्ताद की जूतियों को उठाने वाले, थे जो उस्ताद के जूतों को उठाने वाले। हम कहां हैं? हम सिखाते हैं, मदरसे में बच्चों को अरबी तालीम दी जाती है, उस्ताद मोहतरम ने एक छड़ी लगा दी तो बाप झगड़ने के लिए आता है। हम ऐसे तालीम देंगे हमारे बच्चों को? उस्ताद स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, वहां अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए तो हमारा उस्ताद जब उसका टीचर उसको छड़ी मारता है या कोई तंबी करता है, कुछ डांटता है, तो हम अपने बच्चे के लाड़ में, फरते मोहब्बत में उस्ताद से झगड़ने जाते हैं। थोड़ी सी समझदारी की बात है, थोड़ी सी समझदारी की बात है कि जो इल्म सिखा रहा है उसका रुतबा बड़ा होता है। बस यही हमको समझना है। हम इसीलिए तालीम में पिछड़े हुए। हमको जो तालीम दे रहा है, हमको जो इल्म दे रहा है, हम उसी का अदब नहीं करते। और क्या क्या असर पड़ता होगा आपके बच्चे पर जब आपके बच्चे के सामने आप उसके उस्ताद को डांट रहे होते हैं? क्या वो बच्चा बाद में वो उस्ताद की इज्जत करता है? जिसकी इज्जत हम नहीं करते उससे कुछ सीखना भी पसंद नहीं करते। ये नफ्सियात है हमारी, ये हकीकत है। हमारे दिल में जिसके लिए एहतराम नहीं होता ना, हमारे दिल में जिसके लिए इज्जत नहीं होती ना, फिर वो कितनी भी पते की बात बोले, कितनी भी 16 आने सही बात बोले, हमको उसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं होती, कोई एहतराम नहीं होता। तो हम कहां से सीखेंगे? अदब जरूरी है, अदब। बादशाह सलामत के पास उस्ताद मोहतरम दोनों बैठे हुए एक तख्त पर, दोनों के दोनों बैठे हुए। उस्ताद से बादशाह सलामत ने बड़े अदब से कहा, हुजूर आप उस्ताद हैं, मुझे कुछ तालीम फरमाइए, कुछ इनायत फरमाइए। तो उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि ये सीखने और सिखाने का दर्जा जो है ना बराबर नहीं है, आप जरा तालीम पर नीचे आ जाइए, मैं सिखाऊंगा। तो बादशाह सलामत ने ये नहीं कहा मैं वक्त का बादशाह हूं, मुझे जमीन पे बिठाओगे, मुझे कालीन पे बिठाओगे। बादशाह सलामत जानते थे उस्ताद का अदब क्या होता है। बादशाह उठे और जमीन पर, कालीन पर बैठे और फिर कहा उस्ताद मोहतरम तालीम फरमाइए। क्योंकि ये जो लेवल है ना ये बराबर होना चाहिए। सिखाने वाला आला मकाम पर होना चाहिए, सीखने वाला नीचे होना चाहिए। हमने सिखाने और सीखने वालों का लेवल बराबर कर दिया है। जब एक लेवल के लोग मिलते हैं ना तो वो कहते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो सीखने वाला सिखाने वाले के बराबर नहीं हो सकता। ये अदब की बात है, अदब। वो फारसी का एक मकौला है कि नूर अदब दिल रा रोशन नी कुनत। अदब का नूर दिल को रोशन करता है, और जिनका दिल रोशन होता है ना उसी में तालीम समाई जाती है। तालीम कोई कीचड़ गलाजत या कोई कंकर पत्थर नहीं है। तालीम एक अनमोल चीज है, तालीम एक मोती है, तालीम एक सितारा है, तालीम सोने से बनी हुई कोई कीमती जेवरात से भी अनमोल है। और इनको आप किसी गंदे गमले में रखोगे क्या? हाँ, तालीम को कहां रखोगे? जहां दिल में रोशनी होगी, जो दिल जगमगाता होगा उसी में तालीम समाई जाएगी। और दिल को जगमगाने के लिए अदब जरूरी है। अदब नहीं है हमारे पास। तो उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग अपने खास तौर से बच्चों के लिए स्कूल में जाके असातिज़ा से झगड़ेंगे नहीं। कम से कम ये देख लीजिए, हाँ हकीकत है सभी के बच्चे लाड़ के प्यार के होते हैं। औलाद जो है ना वो माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती है, मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, अगर हमको कौम को आगे लेके जाना है तो हथियार बनाना है। हथियार बनने के बाद ही हम किसी भी जंग को जीत सकते हैं। जंग फूलों के फेंकने से नहीं जीती जाती, तलवारों से लड़ने के बाद ही जीती जाती है। हमने हमारे बच्चों को सर्कस का शेर नहीं बनाना है,
जंगल का शेर बनाना है। चलिए, अदब की बात हुई, अगले पॉइंट पे आते हैं, वालिदैन की बेख्याली। वालिदैन की बेख्याली से ये बात समझ में आती है कि हमारा बच्चा कितना सीख रहा है। अफसोस की बात तो ये है कि हम असातिज़ा हैं, हमको अच्छी तरह से इस बात का तजुर्बा है। कई वालिदैन, कई सरपरस्त तो ऐसे स्कूलों में आते हैं, मेरा बच्चा है ना वो उसको जरा मिलने का है। कहाँ है वो? है ना वो वहां पे गोलू गुड्डू कुछ तो नाम है उसका, तो कहाँ है, कौन सी क्लास में? कितनी अफसोस की बात है, बाप को नहीं पता होता है कि बच्चा कौन सी क्लास में। यानी हमारी तालीम की बेख्याली कहाँ तक है, और हम तालीम की अहमियत जानने के लिए बैठे हैं। तालीम की अहमियत हमको सबको मालूम है। तालीम इल्म इंसान की तीसरी आंख है, इल्म अंधेरों में उजाला करता है, बहुत सारे अक़वाले ज़रीन, बहुत सारी चीजें याद है, लेकिन जो असर नहीं करता उसका सुन के क्या फायदा। हाँ, अमल में लेके आओ, अमल में। हमारे बच्चों पे हमको ख्याल रखना है, बच्चा कितना पढ़ता है, कितना आगे जाता है, किस तरह बन रहा है, उसकी तालीम में कहां तक प्रोग्रेस है। आप उस्ताद को पूछिए ना, उसके टीचर को जाके पूछिए, मेरे बच्चे को पढ़ते नहीं आ रहा, इसको क्यों नहीं पढ़ते आ रहा, वजह बताइए। खाता नहीं है क्या बराबर? मैं उसको खिलाऊंगा, अच्छा पिलाऊंगा, उसका ज़हन दूसरी तरफ रहता है कि उसको घर के काम नहीं बोलूंगा। मैं फख्र के साथ कहता हूं, मुझे घर का काम कभी कभार बोला जाता तो मेरे दादा मेरे चचा को भी गुस्सा करते थे, वो पढ़ने वाला बच्चा है उसको मत बोल। क्यों? समझता नहीं, तालीम का बच्चा है ना, तालीम हासिल कर रहा है तो उसको वैल्यू दो ना। आप लोग तालीम हासिल कर रहा है, आपके बुढ़ापे का सहारा है ना, वो आपकी औलाद है ना, बुढ़ापे का सहारा है। बाप को लात मार रहा है, बड़ा होने के बाद थप्पड़ मार रहा है, गाली दे रहा है, फिर बोलते हैं कैसे उस्ताद ने पढ़ाया, बदतमीज औलाद है। तुमने खुद उसको अदब करना नहीं सिखाया, वो कहां से अदब करेगा, कैसे अदब करेगा? तो हमको वालिदैन को बेख्याली में नहीं रहना है। वालिदैन को जो है ना वो पूरी तरह से ख्याल रखना है अपने बच्चों का। वो अगर उसकी सेहत का ख्याल रखो, दुबला होता है तो क्यों दुबला होता है, खांस रहा है तो क्यों खांस रहा है, तबीयत खराब क्यों है, सारी चीजों का ध्यान रखो। सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है, ये बात याद रखिएगा। बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उनको सेहतमंद भी बनाओ, उनको दिमाग वाला भी बनाओ, और दिमागदार बनाने के लिए जिस तरह तलवार को धार लगाकर बार बार तेज किया जाता ना, तो उसी तरह से उसका फॉलोअप लिया करो, स्कूल में जाया करो, पूछा करो। चलो तीसरी वजह की तरफ जाते हैं, असातिज़ा की गैर जिम्मेदारी। असातिज़ा गैर जिम्मेदार नहीं होते, चंद असातिज़ा होते हैं जो गैर जिम्मेदारी से काम लेते हैं। अब असातिज़ा यहाँ बैठे हुए नहीं है तो मुझे मुनासिब भी नहीं लगता कि असातिज़ा की गैर जिम्मेदारी पे बात करना। बस इतना समझ लीजिए कि एक हदीस का मफहूम है, जो कौम अयानत में खयानत करती है अल्लाह ताला उसका रुआब खत्म कर देता है। तो ये जो तालीम है ना, हम असातिज़ा के पास अमानत है, अमानत हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है कि हमने ये अमानत बच्चों तक पहुंचानी है। अगर हम ये अमानत बच्चों में नहीं पहुंचाते तो कल बरोज़ महशर वही बच्चे अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर हमारा दामन पकड़ेंगे और ये कहेंगे कि अल्लाह ताला इनकी जिम्मेदारी थी, इनके पास अमानत थी इल्म हम तक पहुंचाने की, और इन्होंने इस इल्म को हम तक नहीं पहुंचाया, इन्होंने हमारी अमानत हमको नहीं दी। तो हम लोग अमानत में खयानत ना करें, ये बेहतर है, और अपने रिस्क को हलाल करने की कोशिश करते रहें। और सबसे अहम बात यह है कि हम लोग खुशनसीब असातिज़ा जो लोग हैं वो पेड सोशल वर्कर हैं, यानी सोशल वर्क जो है ना, वो खिदमत खल्क जो है ना, वो फ्री और मुफ्त में की जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को उसकी तनख्वाह भी दी जाती है। चौथी वजह जो है सोहबत है, अपने बच्चों की सोहबत तलाश करते जाइए। वक्त बहुत कलील है और मुझे नज़ीर आतिश साहब की तरफ से अल्टीमेटम भी मिल चुका है। मैं असल में आगे की वजूहात पे गुफ्तगू नहीं करने वाला था, लेकिन चूंकि आप लोग बड़ी संजीदगी से सुन रहे थे, मुझे भी अच्छा लग रहा था, मैं अदब पर ही बात करके अपनी जगह लेना चाह रहा था, लेकिन आगे बात बढ़ चुकी है। तो ये बात याद रखिएगा, सोहबत भी अच्छी होनी चाहिए, और हासिल शुदा इल्म पर इत्मीनान, यानी हमारे नौजवान जो है ना, वो हमने BA पढ़ लिया, BSc पढ़ लिया, अब बस इत्मीनान है, अब खत्म हो गया ना, बहुत पढ़ लिया ना, नहीं। इंसान जो है ना, वो अज़हरुद्दीन खतीब साहब मौल्लिम, इन्होंने कहा है कि कब्र, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करना चाहिए, है ना, मरने तक इल्म हासिल करना। हर आदमी तालिब इल्म रहना चाहिए। जब तक हमारे अंदर ये जज्बा पैदा नहीं होता हम तालिब इल्म का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मफहूम है, इल्म आलिम की गुमशुदा शय है, जहां पाए वही उसका हकदार है। तो इल्म जहां जहां से मिलता है ले लिया कीजिए। हमसे छोटा हमको इल्म दे रहा है, इस बात का
यानी दिल में ईगो पैदा नहीं होना चाहिए। हमारा दुश्मन हमको इल्म दे रहा है, दुश्मनों से भी बहुत तजुर्बात मिलते हैं और अपनों से भी इल्म सीखने को मिलता है, छोटों से भी इल्म सीखने को मिलता है, बड़ों से भी इल्म सीखने को मिलता है। फिर दूसरी बात, आखिरी बात अपनी ख़त्म करता हूँ मुख्तसर करके कि मनाजिल की ला इंतखाबी। हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमको यही नहीं पता कि क्यों पढ़ा रहे हैं। मनाजिल, उसको किस मंजिल पे जाना है, उसका एम्बिशन क्या है, उसका एम क्या है, किस लिए पढ़ा रहे हैं, उसको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या बनाना है, उसको नौकरी करवाना है। जरूरी नहीं है हर तालीम हासिल करने वाला, हर पढ़ने वाला बच्चा नौकरी ही करे। एक अच्छा इंसान भी बन सकता है, माशरे में समाज में तरक्की भी कर सकता है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, अच्छा कारोबार कर सकता है। इल्म हासिल करना नौकरी के लिए जरूरी नहीं है, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। अच्छा बेटा बनने के लिए, अच्छा भाई बनने के लिए, अच्छा बाप बनने के लिए, अच्छा शौहर बनने के लिए इल्म होना बेहद जरूरी है। सिर्फ नौकरी करने के लिए जरूरी नहीं, और हम वो अच्छा ही बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलिए बात को तूल न देते हुए इख्तिताम करता हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस तकरीब को कामयाब बनाए, और हम जो यहाँ से सुनकर जा रहे हैं अल्लाह ताला उस तमाम को हमारे दिमागों में, दिलों में पैवस्त कर दे, और उसकी बरकतों से, तमाम हाजिरीन की दुआओं से हमको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी कौम को अल्लाह ताला दीन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।